السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ نمبر 12۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج کا ایپیسوڈ تھوڑا سا لمبا ہو، اس لیے کہ ناول کے ساتھ ساتھ ہم آج پڑھیں گے ڈپٹی نذیر احمد اور ان کا ناول فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کے درمیان گفتگو۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بلا کسی تاخیر ناول، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ناول کسے کہتے ہیں۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ تو ناول وہ نثری قصہ یا کہانی جس میں ہماری زندگی کی تصویر کشی ہو بہو پیش کی گئی ہو یا کی گئی ہو۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، اس زمانے کی عکاسی اچھی طرح سے کی گئی، تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ ناول۔ وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہو بہو سیم ٹو سیم پیش کی گئی ہو۔ اچھا، یہ ناول کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، ناول کہاں سے آیا؟ تو ناول یہ مغربی ادب کی دین ہے۔ یہ مغرب سے آیا ہوا ہے نا، مغرب سے، ویسٹرن کلچرل یا کلچر کہہ سکتے ہیں، ویسٹرن کلچر۔ ٹھیک ہے، تو مغربی ادب کی دین ہے، یہ دین نہیں ہے، دین ہے۔ ٹھیک ہے، ناول مغربی ادب کی دین ہے۔ اس کا اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ ناول کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے؟ کیا کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا اجزائے ترکیبی پلاٹ، یعنی اس میں ایک برابر، اس کے اندر متوازن ہونا چاہیے۔ کردار، اس میں کون کون سے کردار، کون کون ایکٹر ہونا چاہیے۔ ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ مکالمہ، حیات نگاری، فلسفہ حیات، زبان وغیرہ۔ ٹھیک ہے، پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پہلا ناول کون سا ہے اور کب اس کی اشاعت ہوئی، کب شائع ہوا؟ پہلا ناول، سب سے پہلا ناول، تو سب سے پہلا ناول مرات العروس۔ ٹھیک ہے، مرات العروس یہ کس کی ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب، یہ ناول مرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، جو کہ 1869 کو شائع ہوا تھا۔ پہلا ناول، اردو کا پہلا ناول مرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا 1869 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یا ڈپٹی نذیر احمد کے 6 ناول اور ہیں، 6 ناول اور ہیں، اس کے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد کچھ ناول نگاروں کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر شاد عظیم آبادی، حالی، عبدالحلیم شرر، پنڈت رتن ناتھ سرشار، مرزا ہادی رسوا، پریم چند، سجاد زہر یا زہیر، سجاد زہیر، کرشن چند۔ اس کی کچھ کتابیں بھی ہیں۔ شاد عظیم آبادی کا ناول ہے سورۃ الخیال۔ اگر آپ سے سوال ہو کہ سورۃ الخیال کس کا ناول ہے، تو آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ شاد عظیم آبادی کا ناول سورۃ الخیال ہے۔ اسی طرح حالی، الطاف حسین حالی کا ناول مجالس النساء، رشیدۃ النساء اور اصلاح النساء۔ ٹھیک ہے، جہاں نساء نصاب کو دکھ جائے وہ کس کی ہے؟ حالی کی کتاب ہے یا ناول ہے، حالی کا ناول ہے، مجالس النساء، رشیدۃ النساء، اصلاح النساء۔ اور عبدالحلیم شرر، پنڈت رتن ناتھ سرشار ان کے نہیں ہے۔ اردو ناول کا عہد، نیا عہد کب سے شروع ہوتا ہے؟ نیا دور یا پھر نیو ایرا کب سے شروع ہوتا ہے اردو ناول کا؟ تو 20ویں صدی کی ابتدا میں۔ ٹھیک ہے، اردو ناول کا نیا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ نیا عہد 20ویں صدی کی ابتدا میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے مرزا ہادی رسوا کے بارے میں بھی جانا کہ یہ ناول نگار ہے۔ اس کا ناول کا نام کیا ہے؟ امراؤ جان۔ امراؤ جان کس کا ناول ہے؟ مرزا ہادی رسوا۔ رسوا تخلص ہے، قلمی نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یاد رکھنا ہے، مرزا ہادی رسوا۔ ٹھیک ہے، امراؤ جان۔ اس کے بعد منشی پریم چند، اس کا ناول ہے گودان۔ گودان کس کا ناول ہے؟ منشی پریم چند۔ اور میدان عمل بھی منشی پریم چند کا ناول ہے۔ اس کے بعد سجاد زہر کا ناول لندن کی رات۔ لندن کی رات کس کا ناول ہے؟
सज्जाद ज़ुहैर, उसके बाद कृष्णचंद, इस्मत चुगताई वगैरह भी नावल निगार, ये नए दौर के हैं, नए दौर के हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा, प्रेमचंद, सज्जाद ज़ुहैर, कृष्णचंद, ये नया दौर के हैं। उसको पुराने वाले से क्या है, शाद नज़ीमाबादी, हाली, अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतन नाथ सरसार और डिप्टी नज़ीर वगैरह। समझ में आ गया जी? ठीक है, एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि नावल वो नसरी क़िस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी की तस्वीर हूबहू पेश की गई हो। नावल मगरिब अदब की देन है। अज्ज़ाए तरकीबी में क्या क्या होना चाहिए, प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फ़लसफ़ा हयात, ज़बान वगैरह। पहला नावल मरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का, जो कि 1869 में शाये हुआ। इसके अलावा यानी मरातुल उरूस के अलावा डिप्टी नज़ीर के 6 और नावल हैं। ठीक है, नावल निगार का नाम याद रखना है, शाद अज़ीमाबादी, इनका जो नावल है सूरतुल ख़याल, हाली, मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा, इस्लाहुन्निसा, इनका नावल है। अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतन नाथ सरशार, इनके नावल यहाँ जिक्र नहीं है। उसके बाद उर्दू नावल का नया दौर कब से शुरू होता है, 20वीं सदी की इब्तिदा में। उसके बाद मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल इमराव जान, प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद, गवदान, मैदान अमल, सज्जाद ज़ुहैर का नावल लंदन की रात, कृष्णचंद और इस्मत चुगताई वगैरह है। तो ठीक है, उसके बाद हम अगला जो चैप्टर है हमारा डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल का नाम यहाँ कौन सा है, कौन सा किरदार यहाँ पर है, फ़हमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू पर है। ठीक है, हम जानेंगे ये डिप्टी, असल बात है फ़हमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ये तौबतुन नसूह से लिया गया है। ठीक है, एक नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, तौबतुन नसूह। नसूह एक आदमी का नाम है, उसके तौबा का जिक्र है इसमें, इसीलिए उस नावल का नाम ही क्या है, तौबतुन नसूह। उसी से इसे लिया गया है, फ़हमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फ़हमीदा नसूह की बीवी है और हमीदा क्या है, बेटी है, मंजली बेटी। ठीक है, ठीक है। तो नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को अफजलगढ़ की बस्ती कोरटर ज़िला बिजनौर यूपी में, ठीक है, यूपी में पैदा हुए। तो डिप्टी नज़ीर अहमद 6 दिसंबर 1836 अफजलगढ़ की बस्ती कोरटर ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुए। उसके बाद इनके वालिद का नाम सआदत अली, डिप्टी नज़ीर अहमद का अब्बा का नाम क्या है, सआदत अली। नाना का नाम काजी ग़ुलाम अली शाह, नाना का नाम काजी ग़ुलाम अली शाह। इब्तिदाई तालीम गाँव के मकतब में इन्होंने हासिल की अपने वालिद मोहतरम से, अब्बा से। ठीक है, इब्तिदाई तालीम गाँव के मकतब में अपने वालिद सआदत अली से हासिल की। ठीक है, उसके बाद इनके दादा ससुर, इनकी जो शादी हुई थी तो दादा ससुर का नाम क्या है, मौलवी अब्दुल हक। इनकी शादी मौलवी अब्दुल हक की पोती से हुई थी। ठीक है, दादा ससुर का नाम क्या है, मौलवी अब्दुल खालिक, हक नहीं, मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हुई थी। जब डिप्टी नज़ीर अहमद की उम्र 13 साल की हुई तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया, है ना। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का इंतकाल उनकी 13 साल की उम्र में हो गई। उसके बाद इन्होंने शादी के बाद तदरीसी का आगाज़ किया, तदरीसी सिलसिला का आगाज़ किया। कहाँ से, पंजाब टेम्पल साहिब में 40 रुपये माहवार, है ना। कहाँ से शुरू की इन्होंने, पंजाब टेम्पल साहिब, वहाँ इसको 40 रुपये महीने मिलते थे। ठीक है, उसके बाद वहाँ से इस्तीफ़ा देने के बाद, वहाँ से हट जाने के बाद, छोड़ देने के बाद उन्होंने कानपुर के मदारिस का ओहदा संभाला एज ए डिप्टी इंस्पेक्टर, यानी निरीक्षण के लिए वो चुने गए या मुंतखब हुए डिप्टी इंस्पेक्टर कानपुर के मदारिस वगैरह के लिए मुंतखब हुए। इनका पहला नावल मरातुल उरूस 1869 को शाये हुआ। ठीक है, इनके नावल का नाम आपको याद रखना है, मरातुल उरूस। ये डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है, 1869 को शाये हुआ और इसमें 2 किरदार, मरातुल उरूस के 2 किरदार पूछा जाता है कि उसमें 2 किरदार कौन कौन है। तो एक अकबरी और असगरी, अकबरी और असगरी 2 किरदार है, जिक्र किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे है नबातुन नआश, ये 1872 में शाये हुआ। नबातुन नआश ये नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का 1872 में शाये हुआ। और इसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया है, तो इसमें तालीम पर जोर दिया गया है। और इसमें एक बहुत ही मशहूर किरदार है असगरी का। किसका,
असगरी का, ठीक है। नबातुन नाश में असगरी का किरदार बहुत ही फेमस है। उसके बाद तौबतुन नसूह, इन्हीं का नावल है जो कि 1877 में शाये हुआ। तौबतुन नसूह 1877 में शाये हुआ। उसके बाद फसानाए मुब्तला 1885 में शाये हुआ। फसानाए मुब्तला 1885 और रुयाए सादिका, रुयाए सादिका ये 1884 में शाये हुआ। ये सबसे आखिरी नावल है, शाये हो गया 1884 में, लेकिन आखिरी नावल क्या है? रुयाए सादिका। और सबसे अहम जो नावल है वो इब्नुल वक्त है जो कि 1888 में शाये हुआ। सबसे अहम इनका नावल इब्नुल वक्त जो कि 1888 में शाये हुआ। और रुयाए सादिका सच्चे ख्वाब ये 1884 में शाये हुआ। हालांकि ये सबसे आखिरी नावल है। उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात 28 दिसंबर 1910 को फालिज की वजह से हुई। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात 28 दिसंबर 1910 को फालिज की बीमारी की वजह से हुई। अगर पूछा जाए कौन सी बीमारी में, तो फालिज, लकवा, फालिज की बीमारी से, ठीक है। उम्र 74 साल। चलिए एक बार फिर दोहरा देते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को अफजलगढ़ की बस्ती कॉरिडोर ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुई। वालिद का नाम सादत अली, नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह। इब्तिदाई तालीम गांव के मकतब में अपने वालिद से हासिल की। आला तालीम के लिए इन्होंने दिल्ली कॉलेज का इंतखाब किया और कब गए? 1845 दिल्ली कॉलेज आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया 1845 को, और वहाँ कब तक ठहरे? 1853 तक। 1845 से 1853 तक दिल्ली ही में रहे। उसके बाद मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से इनकी शादी हो गई और इनके वालिद का इंतकाल 13 साल की उम्र में हुई। तदरीसी करियर का आगाज़ पंजाब टेम्पल साहिब से माहवार 40 रुपये शुरू किया। डिप्टी इंस्पेक्टर कानपुर के मदारिस वगैरह के लिए मुंतखब हुए। इनका पहला नावल मरादिल उरूस जो कि 1869 को शाये हुआ और इसमें 2 किरदार अकबर असगरी बहुत फेमस है। उसके बाद नबातुन नाश 1872, इसमें तालीम पर ज़्यादा जोर दिया गया है और इसमें एक किरदार बहुत ही मशहूर है, असगरी का किरदार। उसके बाद तौबतुन नसूह 1877 में शाये हुआ। फसाना मुब्तला 1885। इब्नुल वक्त सबसे अहम अफसाना है जो कि 1888 को शाये हुआ। और रुयाए सादिका सच्चे ख्वाब 1884 सबसे आखिरी नावल है, ठीक है। उसके बाद इनका इंतकाल वफ़ात 28 दिसंबर 1910 को फालिज की वजह से हुई। उम्र 74 साल। उसके बाद हम जानते हैं इसके थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। तो नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? आपको सिर्फ जवाब देना है। जवाब नंबर 1, 6 दिसंबर 1836 बस्ती कॉरिडोर, अफजलगढ़ के बस्ती कॉरिडोर बिजनौर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद इसका नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। इसमें 4-5 है, आपको सबका नाम याद रखना है, लेकिन यहाँ 2 मांगा इसलिए 2 ही देना है। 2 नंबर, नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। तो आपको क्या जवाब देना है? मराअतुल उरूस और तौबतुन नसूह, कोई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है 3 नंबर, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फहमीदा बीवी और हमीदा बेटी। 4 नंबर पर है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे या किताबें लिखी? किसकी तालीम और तरबियत? तो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए नज़ीर अहमद ने तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे और इस्लाह माशरे के लिए भी, लेकिन यहाँ पर आपको बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, ठीक है। 5 नंबर, ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए, ठीक है। ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। इसमें आपके जो तौबतुन नसूह है उसमें जो लिया गया है उसमें 2 किरदार के नाम लिखना है। एक तो नसूह है ही, साथ में यहाँ पर आपको फहमीदा और हमीदा मिल जाएंगे, 2 लिख देना है, फहमीदा और हमीदा।
फहमीदा और हमीदा, ये आपके दो किरदार हो जाएंगे इस नावल से। उसके बाद आते हैं आपका मुख्तसर सवालात में। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको, कुछ कुछ जो हम आपको इशारा कर देते हैं। एक नंबर, नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमला लिखिए, इसको याद रखना है, इस पर ज़्यादा ध्यान, तवील सवालात में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और मुख्तसर सवाल 1-2 जुमले में, उसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो मुख्तसर सवालात में पहला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखिए। अब इसमें एक सवाल होता है डिप्टी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर हुसैन, तो आपको याद रखना है डिप्टी नज़ीर अहमद नाम है, हुसैन नहीं है। तो चलिए जवाब देते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद 6 दिसंबर 1836 को बिजनौर के क्वार्टर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने गांव में अपने वालिद सादत अली से हासिल की। आला तालीम के लिए दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं रहकर तालीम हासिल करते रहे। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू की अव्वलीन नावल निगारों में से हैं। उसके बाद उन्होंने कई नावल भी लिखे जो इस्लाह माशरा पर है। ठीक है, इसमें एक बात छूट गई थी कि डिप्टी नज़ीर अहमद कब के नावल निगार है, अव्वलीन यानी शुरू के नावल निगारों में से एक है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर, फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। ये सवाल आता है, फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए, इसमें आई 2-3 लाइन आपको याद रखना है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह में, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह में फहमीदा एक नेक बीवी और अच्छी माँ का किरदार निभाती है, जिसमें अपने शौहर नसूह के साथ मिलकर घर की इस्लाह की जिम्मेदारी लेती है। साथ ही इस कहानी में अपनी मंझली बेटी हमीदा के हर सवाल के जवाब संजीदगी से देती है, जो एक अच्छी औरत का किरदार या मिसाल है। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह में फहमीदा एक नेक बीवी और अच्छी माँ का किरदार निभाती है। ठीक है, जिसमें अपने शौहर नसूह के साथ मिलकर घर की इस्लाह की जिम्मेदारी लेती है। साथ ही इस कहानी में अपनी मंझली बेटी हमीदा के हर सवाल के जवाब संजीदगी से देती है, जो एक अच्छी औरत का किरदार है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे है कुछ नावल के नाम लिखने हैं। उर्दू के किसी 5 नावल का नाम लिखिए। आपने बहुत ज़्यादा, हमने आपको बताया शहादत ज़िम्मेदारी हाली वगैरह के हैं, इसमें आपको डिप्टी नज़ीर अहमद का ही याद रखना है। जैसे मनाज़िल उरूस, इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह, सूरतुल ख़याल, मैदान अमल। ठीक है, आपको इस सब जवाब देने हैं। उसके बाद आ जाते हैं तवील सवालात में। तवील सवालात में आपको आ जाना है। तवील सवालात में आपका 4 नंबर का जवाब देना है। दर्ज झेल अल्फाज से जुमले बना, आपको वाक्य सेंटेंस बनाने हैं। ये आता है कि मुंदरजा झेल से सेंटेंस बनाइए कि उसका जिन्स ज़ाहिर हो जाए। आपका आता है सवाल आता है, आपको इसी सब का ख्याल रखना है। ठीक है, छोटा छोटा जुमला आपको बनाना है। हमने यहाँ जुमला के साथ साथ उसकी जमा और प्लूरल भी हमने बना दिया, बहुवचक वचन भी हमने बना दिया है। चलिए, तो पहला इसमें लफ्ज़ है नौ। नौ की जमा है अनवा, नौ की जमा अनवा, किस्म की जमा अक़साम, ज़िद की जमा अजदाद, बुखार की जमा बुखारात, बुखार की जमा बुखारात। यहाँ ये बुखार जो आपको फीवर भी हो सकता है और बुखार यहाँ भाप के माना में भी हो सकता है। तो बुखारात, ज़ाब्ता ज़वाबित, लफ्ज़ अल्फाज, अदब आदाब। तो नौ को हम जुमला में इस्तेमाल करें। नौ, ये नावल जासूसी नौ के हैं। ये नावल जासूसी नौ के हैं। ठीक है, किस्म, नावल की 2 किस्म होती है। नावल की 2 किस्म होती है। आपको ऐसे ही जुमला बनाने हैं। ज़िद, ईमान कुफ्र की ज़िद है। छोटा छोटा जुमला बनाएंगे जिससे आपका जिन्स भी ज़ाहिर हो जाए और आपके गलती भी ना हो। बुखार, मुझे बुखार बहुत तेज़ है, मुझे बुखार बहुत तेज़ है, या ये कश्ती बुखार से चलती है। ज़ाब्ता, स्कूल का ज़ाब्ता बहुत सख्त है, स्कूल का ज़ाब्ता बहुत सख्त है। ज़ाब्ता कानून है ना, रूल्स, नियम, रेगुलेशंस। ठीक है, लफ्ज़, हम ज़बान से जो बोलते हैं वो लफ्ज़ हैं, हम ज़बान से जो बोलते हैं वो लफ्ज़ है। या बामाना आवाज़ को क्या बोलते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं। अदब, बड़ों का अदब करो, या हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, उस्ताद का अदब करना चाहिए, अदब से पेश आने चाहिए। ठीक है, वगैरह। समझ में आ गया। चलिए, तो आज हम यहीं से अपना आज
اپنا ایپیسوڈ نمبر 12 ختم کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم لوگوں نے ایک لمبا سفر طے کر لیا ہے۔ آگے ہم لوگ مکتوب، اس کے بعد نظم و غزل وغیرہ پر آئیں گے، اس میں تھوڑا سا ذہن کو خلاصہ کر کے اور پھر انٹرٹینمنٹ کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار رہیے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔